So, uh, good day, everyone. First of all, welcome back to our third part in Introduction to Databases. So, we are going to discuss about database independence in this particular unit. Okay, we have been discussing about how actually databases are important. We discussed about advantages and disadvantages of databases. We discussed about ER model and its concepts. Okay, we discussed about uh, what is a schema, what's an instance, and we also discussed about how database is important compared to traditional file systems. So we have discussed all of these things in previous part. Now in this third part we are going to discuss about actually database independence or data independence in a database management system. Okay, so how many types of data independence are there? So there will be two different types that we will be discussing, that is physical data independence and logical data independence. We will also be discussing about, let's say, about data models, like what kind of data models are utilized or what kind of data models are used. So we will be discussing about network data model, hierarchical data model, entity relationship data model, relational data model, object oriented data model. So we will discuss about all of these data models, and eventually we will wrap up this particular session with database languages, that is SQL, structured query language. Okay, so why SQL is being used or how SQL is divided into different parts, we will be discussing that. So let's start with, first of all, little bit of revision from the previous topic, that is schema and instance. Okay, so what is actually schema? As we discussed, schema is the skeleton structure, or you can say the logical view of your entire database. When we talk about schema, you can say, like if I say that okay, you have to build a university database, that does not mean you have to first of all create the whole database on its own. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप स्कीमा बनाओगे. स्कीमा दैट मीन्स रफ लेआउट ऑफ how your database tables are going to be constructed, what are going to be the actual tables, how these tables are going to be related. So that skeleton structure जिसके बेस पे आप एक्चुअल में अपने डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करोगे, उसे हम कहते हैं स्कीमा. ठीक है, तो स्कीमा आपके दो प्रकार के होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट वन वाज फिजिकल स्कीमा, सेकंड वन वाज लॉजिकल स्कीमा. तो फिजिकल स्कीमा क्या करता है, वो आपके डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है फिजिकल लेवल पे. फिजिकल लेवल पे दैट मीन्स किस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर यूज होने चाहिए आपके डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए. जैसे कि हमारा जो डेटा हमें स्टोर करना है, हमें इंडेक्स के हेल्प से हमें स्टोर करना है, दैट मीन्स वी वांट टू गिव देम इंडेक्स नंबर्स, या फिर हमें वो बिट वाइज स्टोर करना है, हमें वो ब्लॉक्स वाइज स्टोर करना है. तो ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइन के लिए जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, वो कौन से स्कीमा में डिफाइंड होते हैं, फिजिकल स्कीमा में. वहीं पे अगर मैं लॉजिकल स्कीमा की बात करूं, तो लॉजिकल स्कीमा लॉजिकल लेवल पे डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटा को कैसे होल्ड करना है लॉजिकल लेवल पे, वो डिफाइन करता है. तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर मैंने डेटाबेस का टेबल क्रिएट किया तो उसके ऊपर क्या रूल अप्लाई करने हैं, उस पर मुझे क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पे डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा अपने लॉजिकल स्कीमा पे. ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे नोट करके जो पॉइंट मैंने पीपीटी में लिख रखा है, आप भी वो जरूर ध्यान से पढ़ें. और ये चीज ध्यान रखें कि अगर हम स्कीमा डिजाइन करते हैं, उसका मतलब कि आप तब स्कीमा डिजाइन करोगे जब आपका डेटाबेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. मतलब कि मैंने आपको कहा कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाना है, या मैंने आपको कहा कि मुझे हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाना है, उस सिनेरियो में आप स्कीमा क्रिएट करोगे. ठीक है, उस सिनेरियो में आप स्कीमा क्रिएट करोगे. उसके बगैर, मतलब स्कीमा एक बार हमने क्रिएट किया, उसके बाद हम डेटाबेस का डिजाइन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने स्कीमा अगर बनाया है, तो वहां पर उसके अंदर, स्कीमा के अंदर हम डेटा स्टोर नहीं करवाते, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है. स्कीमा इज जस्ट द लॉजिकल स्ट्रक्चर, और यू कैन से स्केलेटन स्ट्रक्चर, रफ लेआउट ऑफ हाउ योर डेटाबेस इज गोइंग टू एक्चुअली लुक. ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पिछले पार्ट में रैप अप करने से पहले डिस्कस किया था, दैट वाज इंस्टेंट, सॉरी नॉट इंस्टेंट, इंस्टेंस. इंस्टेंस दैट मीन्स आप लोगों ने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तभी आप लोग जब क्लास क्रिएट करते हो, क्लास क्रिएट करने के बाद जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस.
इंस्टांस क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लास का एक सर्टेन टाइम की पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसे हम इंस्टेंस कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपके डेटाबेस का जो भी स्टेट है, आपके डेटाबेस का जो भी स्टेट है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। तो एक तरीके से आप कह सकते हो स्नैपशॉट ऑफ अ डेटाबेस। अगर मैं अभी करंटली 5:40 पे सपोज इस पर्टिकुलर पीपीटी का मैं स्नैपशॉट लेता हूं, तो वो इस पीपीटी का इंस्टेंस हो जाएगा 540 का। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन डेटाबेस इंस्टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैसा स्कीमा है और उसके अंदर डेटा किस प्रकार से स्टोर होता है। जैसे अगर मैं एक्सटर्नल स्कीमा की बात करता हूं, एक्सटर्नल स्कीमा दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से हियर, लेट मी स्टार्ट ओवर हियर। एक्सटर्नल स्कीमा अगर है, एक्सटर्नल स्कीमा या फिर आप लोग कह सकते हो व्यू लेवल, ठीक है, यहां पर आपका डेटा किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा? हमारा डेटा, हम किस प्रकार से डेटा को जानेंगे? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, हम कॉलम नेम से जानेंगे। हमें जब भी जो डेटा फैच करना होगा तो हम इन कॉलम नेम से पहचानेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम डेटा फैच करेंगे। वहीं पे यही डेटा जब मैं कंसेप्चुअल लेवल या फिर लॉजिकल लेवल की बात करता हूं, यहां पर यही सेम डेटा किस प्रकार से स्टोर होगा? मैं कॉलम नेम लिखूंगा स्टूडेंट आईडी, या स्टूडेंट आईडी की जगह पे वहां पे कॉलम नेम मेरा सिंपली मैं आईडी जाके स्टोर कर रहा हूँ। इसके अंदर कैसा डेटा जाने वाला है? इसके अंदर नंबर डेटा जाने वाला है। तो मैं ये डेटा टाइप्स वहां पे मेंशन करूंगा। इसकी साइज क्या होगी? सपोज इसकी साइज है 3 साइज का नंबर डेटा जाना है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन होंगी? आपके कंसेप्चुअल लेवल पे। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने जैसे यहाँ पर लिखा स्टूडेंट नेम, मेरा जो कॉलम है उसके अंदर स्ट्रिंग डेटा जाना चाहिए। एज है, उसके अंदर इंटीजर या न्यूमेरिक डेटा जाना चाहिए। तो ये सारे जो डेफिनेशंस हैं ये कहाँ पे मेंशन होती हैं? आपके लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल पे। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे प्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल स्कीमा पे हमने कोर्स का नेम दे दिया कि भाई टेबल का नेम ये होगा, सी आई डी, इंटीजर, सी नेम, स्ट्रिंग, ये सारे, और स्टूडेंट टेबल होगा उसमें भी ये सारे कॉलम नेम्स होंगे। वहीं पे जब कंसेप्चुअल स्कीमा में जाएगा तो ये किस प्रकार से स्टोर हो रहा है? आईडी का इंटीजर टाइप होगा, नेम का स्ट्रिंग टाइप होगा, ठीक है, लॉग इन का स्ट्रिंग टाइप होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे इस प्रकार से स्टोर होंगी। वहीं पे फिजिकल स्कीमा में आपका जो डेटा है वो किस प्रकार से स्टोर होने वाला है? वो कोई अनऑर्डर्ड फाइल्स में स्टोर होने वाला है। हर कॉलम को इंडेक्स नंबर अप्लाई करके हम ऐसे रिकॉर्ड स्टोर करने वाले हैं, या फिर उन्हें बिट वाइज स्टोर करने वाले हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे रहेगी? फिजिकल स्कीमा में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्कीमा के बारे में पढ़ते हो या फिर आप 3 एब्स्ट्रैक्शन लेवल के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो डेटा है बाहर यूजर को, इट इज जस्ट प्लेन यूजर नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे अगर मैं फेसबुक का पेज यूज कर रहा हूँ तो मैं अगर सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जब देता हूँ, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड वो मेरे लिए तो सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड है, लेकिन जब वो स्टोर होते हैं डेटाबेस टेबल में तो वहां पर क्या होगा? वो यूजर नेम की जगह पे कॉलम नेम क्या होगा? ईमेल होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट का आईडी लिखा हुआ है, वही यहाँ पर आईडी है। ठीक है, कोर्सेस का यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे वो सी आई डी है। तो ऐसा डिफरेंस आ सकता है कि वहां पर हमारे पास यूजर नेम लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है ईमेल आईडी। ठीक है, और ईमेल आईडी के साथ साथ ये भी मेंशन होगा कि इसके अंदर डेटा कैसा जाना चाहिए? कैरेक्टर जाना चाहिए, वेर कैर जाना चाहिए, मतलब मिक्स वेरिएबल कैरेक्टर जाना चाहिए, न्यूमेरिक डेटा जाना चाहिए। तो ये डेटा टाइप भी मेंशन होगा आपका कौन से लेवल पे? कंसेप्चुअल लेवल पे। तो ये सारी चीजें मेंशन होती हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप फिजिकल स्कीमा और कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल स्कीमा के, या फिर फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल की बात करते हो। ये तीनों चीज आप अगर ऑनलाइन भी कहीं पे सर्च करते हो, आप गूगल भी करते हो, ओके, तो आप यहाँ पे अगर देखते हो कि हाउ डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन 3 डिफरेंट लेवल्स, लाइक एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को आपको पता है, यू कैन कॉल इट व्यू लेवल ऑल्सो, ओके। कंसेप्चुअल लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल लेवल एंड फिजिकल लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल लेवल। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर नेट पे आप कहीं पे पढ़ते हो और फिजिकल लेवल को इंटरनल लेवल करके लिखा हुआ है, सो दे बोथ आर सेम।
Okay, similarly external level is mentioned as view level, then also they both are same. Okay, so next topic we are going to discuss is data independence. So what is data independence? Data independence is defined as the property of DBMS that helps you to change the database schema at one level of a database system without requiring to change the schema at the next higher level. अब इसे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर. सी हियर, हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल्स हैं. व्यू लेवल जो कि यूजर एक्सेस करता है, ठीक है, यूजर हमेशा व्यू लेवल को एक्सेस करेगा. और फिजिकल लेवल में आपके होंगे स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड ड्राइव, टेप ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स, ऑल ऑफ दैट थिंग. और व्यू लेवल पे कुछ ना कुछ इंटरफेस रहेगा, यूजर को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हेल्प से वो डेटाबेस को एक्सेस करेगा. अब हमारा डेटा इंडिपेंडेंस क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि अगर मैं किसी भी एक लेवल पे चेंजेस करता हूं तो उसकी वजह से मेरा दूसरे लेवल पे इम्पैक्ट नहीं गिरना चाहिए या वहां पे मुझे चेंजेस ना करना पड़े, तो मैं कह सकता हूं कि डेटा इंडिपेंडेंस मैंने अचीव किया है. सी, थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ध्यान दीजिए. अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ डेटाबेस के डेफिनेशंस में, तो उसकी वजह से अगर मुझे अपने व्यू में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं तो मैं डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया है, ऐसा मैं नहीं कह सकता. डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है? डेटा इंडिपेंडेंस कहता है कि अगर आपने किसी एक लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं डेटाबेस की डेफिनेशन में, डेटाबेस के स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, डेटाबेस के आउटर लेयर में या व्यू में, किसी में भी आपने चेंजेस किए, उसकी वजह से अगर दूसरे लेवल पे भी मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं आपको, तो हमने डेटा इंडिपेंडेंस अचीव नहीं किया. तो डेटा इंडिपेंडेंस हम कब अचीव करते हैं? जब हमने किसी एक लेवल में चेंजेस किए, उसकी वजह से दूसरे लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं गिरा रहे या फिर कोई इम्पैक्ट नहीं गिरता, तब हम कह सकते हैं कि वी हैव ट्रूली अचीव्ड इंडिपेंडेंस. डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल्स. किसी भी लेवल में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो हम अचीव कर पा रहे हैं. तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, सी हियर, डेटा इंडिपेंडेंस इज व्हाट? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ DBMS दैट हेल्प्स यू टू चेंज द डेटाबेस स्कीमा एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग यू टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल. अगर मैंने इस लेवल में कुछ चेंजेस किए और मेरे इस लेवल पे मुझे कोई चेंजेस नहीं करने पड़ रहे, दैट मीन्स आई हैव अचीव्ड डेटा इंडिपेंडेंस. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइज. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन ऑब्वियसली मैसेज मी दैट क्वेरी. ओके, सो सी हियर, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डेटा इंडिपेंडेंस. अब डेटा इंडिपेंडेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? कि अगर मैं अपने इंटरनल स्कीमा या फिर फिजिकल लेवल पे कोई चेंजेस करता हूं, अपने फिजिकल लेवल पे फिजिकल स्कीमा में कोई चेंजेस करता हूं, तो उसकी वजह से अगर मुझे कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया है. तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करेंगे? जैसे सपोज फिजिकल स्कीमा जो है या फिजिकल लेवल है, इंटरनल लेवल जो है, वो किससे डील करता है? वो डील करता है हमारे हार्ड ड्राइव से, हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर से डील करता है. तो अगर मैं अपने स्टोरेज स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करता हूं और उसकी वजह से अगर मेरे डेटाबेस टेबल्स की डेफिनेशन में मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ता, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया है. ठीक है, तो ये चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो वो कहां पे अकर करता है? वो अकर करता है आपके लॉजिकल इंटरफेस पे, लॉजिकल लेवल के इंटरफेस पे. ठीक है, और मोस्टली हम हमारे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को यूज करके हमारे कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल को दोनों को सेपरेट करने की ट्राई करते हैं. तो जैसे यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करता हूँ आपको, ठीक है, सपोज एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक डेटाबेस है जो एक स्टोरेज ड्राइव पे अवेलेबल है. सपोज ये जो स्टोरेज ड्राइव है हमारे पास 100 TB की है. ठीक है, 100 TB की हार्ड ड्राइव है जिसमें डेटा स्टोर होते जा रहा है. 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब ये हार्ड ड्राइव ऑलमोस्ट फुल होने के लिए आ गई. मतलब अब मुझे ये हार्ड ड्राइव की साइज चेंज करनी पड़ेगी और मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं टू 1000 TB. मतलब ये जो 100 TB का डेटा है वो भी मुझे कॉपी करना है इस पर्टिकुलर न्यू हार्ड ड्राइव में. ठीक है, अब यहां पर आप क्या चेंज कर रहे हो? आप चेंज कर रहे हो स्टोरेज स्ट्रक्चर.
जो एक्चुअल में स्टोरेज स्ट्रक्चर है, आपके एक्चुअल में स्टोरेज डिवाइस है, वो आप हार्डवेयर डिवाइस चेंज करना चाहते हो। अब ये जब आप डिवाइस चेंज करोगे, उसकी वजह से आप नहीं चाहोगे कि आपके टेबल की डेफिनेशंस में कुछ चेंज हो, आपके टेबल की डेफिनेशंस या फिर टेबल का जो डेटा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, आप नहीं चाहोगे ये चीज हो। ठीक है, तो अगर आप जब ये मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आप ये जब ट्रांसफर कर रहे हो, आप जब ये हार्ड ड्राइव आपकी चेंज कर रहे हो फ्रॉम 100 TB टू 1000 TB, ये चेंज करने पे अगर आपके टेबल की जो डेफिनेशन है कि भाई मेरे टेबल में 5 कॉलम है, वो 5 की 5 ही कॉलम की डेफिनेशन रहेगी, उसमें मुझे कोई न्यू एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है टेबल की डेफिनेशन में। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि मैंने ये 1000 TB की हार्ड ड्राइव अप्लाई की, मैंने चेंज कर दी, 100 TB की हार्ड ड्राइव मैंने रिमूव की, और इसे मैंने रिमूव की और न्यू हार्ड ड्राइव मैंने अप्लाई की दैट इज ऑफ 1000 TB, और मेरा जो 100 TB का डेटा था वो सारा मैंने शिफ्ट कर दिया इस 1000 TB की हार्ड ड्राइव में। और जब मैंने ये चेंज किया, तब मुझे अपने टेबल की डेफिनेशन में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर ये मैं अचीव करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने क्या अचीव किया, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहां पे होता है। ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमेशा आपका लॉजिकल और फिजिकल लेवल के बीच में होगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करोगे, इट विल ऑलवेज अकर ओवर हियर, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आई होप दिस फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज क्लियर। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके अगर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कोई मॉडिफिकेशन होते हैं, उसकी वजह से अगर आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे अपने लॉजिकल लेवल पे या टेबल्स की डेफिनेशंस में, तो हम कह सकते हैं कि हमने फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया है। सेम थिंग्स ओवर हियर। अब उसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, सी हियर, यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है। अगर आपने न्यू स्टोरेज डिवाइस लगाई या फिर न्यू मैग्नेटिक टेप ड्राइव आपने अप्लाई लगाई आपके सिस्टम में, तो आपके इस न्यू मैग्नेटिक टेप की वजह से अगर आपने टेबल की डेफिनेशन में चेंज नहीं किया, दैट मींस वी हैव अचीव्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक, जैसे कि अगर सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये डोंट टेक इट दिस सीरियसली, कि अगर मेरा जो डेटा जो है वो करंटली पहले ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा था, और अब मैं उसे स्टोर करवाने की ट्राई कर रहा हूँ ग्राफ स्ट्रक्चर में, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एग्जांपल। आपने इंडेक्स नंबर्स में कुछ चेंजेस कर रहे हो, इंडेक्स नंबर्स में आप चेंज कर रहे हो, मतलब आप स्टोरेज डिवाइसेस में जो स्टोरिंग पैटर्न है उसमें चेंजेस कर रहे हो, आप हैश एल्गोरिदम में चेंज कर रहे हो, तो वो आप कंप्रेसिंग टेक्निक्स में आप चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में अपने डेटाबेस टेबल की कोई डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सिमिलरली जैसे मेरा डेटाबेस करंटली स्टोर था डी ड्राइव में, मैं उसे सी ड्राइव में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप टेबल की डेफिनेशन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, आप नया कॉलम कोई ऐड नहीं कर रहे, कोई कॉलम को डिलीट नहीं कर रहे, कोई डेटा डिलीट नहीं कर रहे, दैट मीन्स वी हैव अचीव्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करता हूं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की, तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे, जब भी हम डेटा जब भी हम डेटा को, ठीक है, जब भी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि अगर मैंने अपने को सॉरी कंसेप्चुअल स्कीमा, अगर कंसेप्चुअल स्कीमा में मैंने कोई मॉडिफिकेशन किए और उसकी वजह से अगर मेरे एक्सटर्नल लेवल या फिर जो यूजर को इंटरफेस पे दिख रहा है या वो जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है जिसकी हेल्प से वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, उस प्रोग्राम में, एक्चुअल प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम कह सकते हैं कि हमने कौन सा डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सी, डोंट गेट कंफ्यूज विद फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी बट बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल रिवीजन ऑफ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, मैं स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में चेंजेस कर रहा हूं, दैट मींस मैं स्टोरेज ड्राइव चेंज कर रहा हूं। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही ध्यान रखिए कि आपने स्टोरेज ड्राइव चेंज की, और ड्राइव चेंज करने पे भी आपने टेबल की डेफिनेशन चेंज नहीं की, मतलब कि अगर मेरे टेबल में 5 कॉलम है तो 5 की 5 ही कॉलम रहेंगी, उसमें कोई नई कॉलम ऐड नहीं हो रही, नहीं कोई ना कोई कॉलम डिलीट हो रही है, ना उसके अंदर का कोई डेटा डिलीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैंने फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया। ठीक है, मैंने उसका एक्चुअल में हार्डवेयर डिवाइस में चेंज कर रहा हूँ, रैम में, सॉरी नॉट रैम, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हार्ड ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक टेप ड्राइव हो गया, दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस। लेकिन लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है।
आपने अगर आपके टेबल की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए, ठीक है, मतलब आपके पास सपोज टेबल में 4 कॉलम का डेटा था, अब आप 2 कॉलम और ऐड कर रहे हो, तो यहां पर आपने टेबल की डेफिनेशन में चेंज किया। अब ये टेबल की डेफिनेशन में अगर आपने चेंज किया तो इसकी वजह से अगर टेबल जो आपका एक्चुअल प्रोग्राम है जो यूजर एक्सेस कर रहा है उसमें भी अगर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो हम कह सकते हैं कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस नहीं है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होगा कि एक लेवल पे आप चेंज कर रहे हो, दूसरे लेवल पे अफेक्ट कर नहीं होना चाहिए, वहां पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल देख लेते हैं एक सिंपल सा। सी हियर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यहां पर सपोज मेरे पास डेटाबेस टेबल गिवन है, ओके, ओके, सो ऑलराइट, सो मैं ये कह रहा था कि सपोज मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी करंटली हाउ मेनी रोज आई हैव 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 कॉलम्स मेरे पास डेटाबेस टेबल में है, मतलब यहाँ पे जो भी क्रिएट टेबल का सिंटैक्स होगा ऑल ऑफ दोस डेफिनेशंस रिमेन्स ओवर हियर इन लॉजिकल लेवल। ओके, सो लेट्स से आई वांट टू ऐड 3 more columns in my database table, 5 6 and 7, so these 3 columns, these are the new columns। अब जो हमारा व्यू था, यूजर को जो व्यू मिल रहा था, ठीक है, यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन थी, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, उसने अपना फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती थी। हमेशा पहले 4 ही कॉलम का डेटा मांग रहा था, लेकिन आपने अब इस टेबल में डेफिनेशन चेंज किया, उसकी वजह से अब हर स्टूडेंट को जब भी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने ये जो 3 कॉलम्स यहाँ पे ऐड की, उसकी वजह से यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, आपने जो बना रखा था, उसमें आपको टेक्स्ट बॉक्सेस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। पहले सिर्फ 4 ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती थी, अब 5th 6th एंड 7th दीज इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी कलेक्टेड। तो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ा, आपको एक्चुअल में इसका जो प्रोग्राम था इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने टेबल की डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन किए। तो ये हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस नहीं है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि अगर मैंने अपने यहाँ पर डेफिनेशन में भी कुछ चेंजेस किए, मैंने अपने टेबल की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए, तो यहाँ पर मुझे चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से फेसबुक का इंटरफेस देख लीजिए। फेसबुक में हमारा यूजर नेम और पासवर्ड, उसके जो स्टार्टिंग का लॉगिन पेज है उसमें मे बी उन्होंने डिजाइन में चेंज किया है, लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा वही 2 चीज मांगता है, राइट? तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि उन्होंने भले ही डेटाबेस लॉगिन वाले टेबल में प्रीवियसली उन्होंने सिर्फ 2 ही कॉलम रखी होंगी वहां पर कि वी हैव ईमेल एंड पासवर्ड, लेकिन बाद में जाके सपोज उन्होंने एक और वहां पे कॉलम क्रिएट किया, लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम, लेकिन ये जो 2 कॉलम्स इन्होंने ऐड किए बाद में जाके, इसकी वजह से इन्होंने हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है या फिर यूजर का जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कि यूजर नेम प्रोवाइड करिए, पासवर्ड प्रोवाइड करिए और उसके बेस पे आप लॉग इन कर जाइए, तो ये 2 डेटा जो ऐड किया इन्होंने बाद में, इसकी वजह से उस पर्टिकुलर पेज की कोडिंग में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप अगर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मतलब आपने हार्ड ड्राइव चेंज की और उसकी वजह से टेबल की डेफिनेशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम कह सकते हैं हमने फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया। और अगर मैंने टेबल की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए, इसकी वजह से जो प्रोग्राम यूजर यूज कर रहा है उसके कोडिंग में मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो मैं कह सकता हूं कि हमने लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया है।
सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर फॉर यू गाइज। आप लोग एक बार ज़रूर इसे थोड़ा और इलेबोरेटली देखना, अपने एंड पे इसे थोड़ा और स्टडी करने की ट्राई करना, और जो भी डाउट्स है ब्रिंग दोज डाउट्स टू मी, वी विल ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स इन अवर नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर आप कोई न्यू एट्रीब्यूट, मतलब कि आप नया कॉलम ऐड कर रहे हो अपने डेटाबेस टेबल में, और उसकी वजह से आपको अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में वापस से कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ रहे हैं, दैट इज लॉजिकल, दैट इज नॉट लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अगर आपको चेंज करने पड़ रहे हैं तो आपको चेंज करे बगैर आप नए टेबल के डेटाबेस टेबल में नए कॉलम्स आप ऐड कर पा रहे हो, तब हम कह सकते हैं कि आपने लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव किया है। या फिर मैंने कहीं पे, जैसे मेरे पास फर्स्ट नेम अलग कॉलम था, लास्ट नेम अलग कॉलम था, और मैं इन दोनों कॉलम्स को मर्ज कर देता हूँ, इसकी वजह से भी मेरे एक्चुअल प्रोग्राम में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज योर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइज। नेक्स्ट वन इज डेटा मॉडल्स। सो what is data model? Data model, जैसे मैंने आपको कहा था, it is collection of tool which describes structure of database and provides means to achieve this abstraction। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आप जो भी टूल्स यूज करते हो, उस टूल्स की हेल्प से आप डेटा को डिस्क्राइब कर पाते हो, डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो आप रिप्रेजेंट कर पाते हो, आप उस पर्टिकुलर डेटा का मीनिंग क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, उनके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्या बाउंडेशंस है, क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें अगर आप कोई एक पर्टिकुलर मॉडलिंग टेक्निक की हेल्प से अगर डिफाइन कर पाते हो, दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर using or we are creating data models. So there are various types of data models. Some of them are mentioned over here, so we will be discussing them now. Okay, like relational data model, entity relationship data model, object based data models, then network model and hierarchical model. So let's go into them, let's jump to them. See here, so we will be discussing about, first of all I'm going to tell you about hierarchical data model. Okay, हायरार्किकल डेटा मॉडल कैसा होता है? जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है बचपन में, हम लोग जब भी हमें कुछ क्लासिफाई करने को कहा जाता था, वी यूज टू वर्क इन दिस वे, लाइक एनिमल्स, देन वी हैव डॉग, देन कैट, और वी हैव लाइक एवियंस, देन वी हैव amphibians, all of those things we had when we learned about classification of data. Okay, तो यहाँ पे भी जैसे मेरे पास एनिमल है, डॉग, कैट, सम ऑफ द फीचर्स माइट बी कॉमन। सो जब हम डेटाबेस में हमारा जो टेबल है, ठीक है, जो भी टेबल है या फिर उसका डेटा जो है, हम अगर इस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, देन वी आर एबल टू, वी कैन से वी आर एबल टू टेल दैट पर्टिकुलर डेटा मॉडल एज हायरार्किकल डेटा मॉडल। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से दिस इज माय स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब ये मेरा सबसे पहला टेबल है। सपोज मेरे पास दूसरा टेबल जो आता है वो है मेरा सब्जेक्ट टेबल, तो मैं उसे कैसे मेंशन करूंगा? दिस वे, दिस इज माय सब्जेक्ट टेबल। एक मेरे पास टेबल है, लेट्स से इट इज माय फैकल्टी टेबल, सो आई विल मेंशन दिस ओवर हियर, दिस इज माय फैकल्टी टेबल। लेट्स से आई हैव अनदर टेबल व्हिच इज माय मार्क्स टेबल। सो इन दिस ऑर्डर, यहाँ पे मैं टेबल्स को पूरा डिफाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टेबल नेम मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो सो दिस इज माय टॉप नोड, और यू कैन कॉल इट अ रूट नोड, रूट टेबल। ठीक है, अब मुझे कोई भी टेबल का डेटा एक्सेस करना होगा तो सबसे पहले मुझे इस टेबल के थ्रू जाना होगा। सबसे पहले मुझे स्टूडेंट टेबल एक्सेस करना होगा, फिर मुझे स्टूडेंट टेबल से सब्जेक्ट टेबल एक्सेस करना होगा, और उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि भाई कौन सी प्लस प्लस पढ़ रहा है या कौन डीबीएमएस, तब जाके मैं इसमें पता कर सकता हूँ, ओके दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग डीबीएमएस। ठीक है, वैसे ही मैं कौन सा स्टूडेंट कौन से फैकल्टी के अंडर पढ़ रहा है वो भी मुझे पता करना है, देन आई हैव टू ऑलवेज गो थ्रू दिस टेबल। मैं डायरेक्टली फैकल्टी टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ हायरार्किकल डेटा मॉडल व्हिच यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए हायरार्किकल फॉर्म। ठीक है, तो ये मेजर ड्रॉबैक था इस हायरार्किकल डेटा मॉडल का। तो उन्होंने बोला कि भाई ये डेटा इस तरीके से अगर हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, डेटा मॉडलिंग इज दैट मीन्स वी आर यूजिंग सम, वी आर मेकिंग we are trying to represent data in a certain format, we are trying to make meaning out of our data, we are trying to show relationship between our data। तो यहाँ पे हमारा डेटा क्या है? स्टूडेंट का डेटा है, सब्जेक्ट का डेटा है, मार्क्स का डेटा है, फैकल्टी डेटा, ये सारा हमारा डेटा है।
अब इनके बीच में रिलेशनशिप हम कैसे शो कर रहे हैं? इन अ हायरार्किकल फॉर्म। तो ये हायरार्किकल फॉर्म में अगर मैं अपना डेटाबेस क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे लिए दिक्कत ये होती है कि अगर मुझे किसी का मार्क्स एक्सेस करना है तो मुझे स्टूडेंट टेबल को भी एक्सेस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टेबल को भी एक्सेस करना पड़ेगा, फिर जाके मैं मार्क्स को एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा ड्रॉबैक था हायरार्किकल डेटाबेस में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर हाउ हायरार्किकल डेटा मॉडल इज यूज्ड। ओके, तो इसकी वजह से व्हाट दे सेड दैट ओके दिस डेटा मॉडलिंग टेक्निक इज नॉट गुड, लेट्स गो एंड work with some other data model. So they introduced which one? They introduced network data model. Okay, so how network data model works? वहां पर हमारे पास जैसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क्स होता है, how this works? This is connected with this one, this is connected with this one, and this is connected with this one. Let's say I have one more computer over here. Okay, so this is connected with this one, this is connected with this one, and this is also connected with this one. अब सपोज इस कंप्यूटर को मुझे एक्सेस करना है तो जरूरी नहीं है मुझे ये पूरा पाथ क्रॉस करना पड़े, मैं इसे यहां से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ और यहां से भी एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर मैं ये पाथ ले सकता हूँ और फिर इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है आप कौन से पाथ से जाना चाहते हो। ठीक है, जो नोड आपके एकदम पास में, जो नोड whichever node is closer to you, you will follow that path. Okay, so that is how network model works. तो हमारा जो डेटाबेस टेबल्स थे वो किस तरीके से कनेक्टेड थे? जैसे मेरा यहाँ पे स्टूडेंट टेबल हो गया, कंसिडर दिस माय स्टूडेंट टेबल। ओके, इट इज कनेक्टेड विथ माय subject table, it is also connected with my marks table, it is also connected with my faculty table, and faculty table is also connected with subject table. तो इस तरीके से नेटवर्क पूरा बना हुआ था और marks is also connected with subject table. So in this way there was network of tables, these tables were connected in a network. तो इसका बेनिफिट क्या था कि उसके जैसे मुझे हमेशा, जैसे मुझे फैकल्टी का डेटा अगर एक्सेस करना है, आई डोंट हैव टू ट्रैवर्स थ्रू होल स्टूडेंट एंड मार्क्स एंड सब्जेक्ट एंड फैकल्टी, नो, I don't have to travel this also, student, subject and faculty. I can directly access faculty if I have the actual index number or I have the path to this particular table. तो ये बेनिफिट था हमारे पास फैकल्टी टेबल में। ठीक है, सपोज मेरे पास सब्जेक्ट टेबल का एक्सेस है, देन फ्रॉम हियर आई कैन डायरेक्टली जंप टू फैकल्टी, आई डोंट हैव टू वेट फॉर, आई डोंट हैव टू गो टू स्टूडेंट टेबल देन सब्जेक्ट एंड देन फैकल्टी। ठीक है, तो ये बेनिफिट था नेटवर्क में कि हम कहीं से भी उस पर्टिकुलर नोड को या उस पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक था। इसका ड्रॉबैक ये था कि जैसे जैसे नेटवर्क की साइज बढ़ती जाएगी वैसे मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का जो एल्गोरिदम है वो भी, उसमें भी मुझे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। अगर मैंने उस पर्टिकुलर डेटा को, जैसे मुझे सपोज फैकल्टी अभी करंटली एक्सेस करना है, सो आई हैव 3 डिफरेंट पाथ्स, आई हैव लाइक स्टूडेंट, मार्क्स, सब्जेक्ट एंड फैकल्टी, वन इज दिस from student to faculty and one is student, subject and faculty. So I have 3 paths to go from here. और मेरे पास अगर स्टूडेंट टेबल का एक्सेस है then I will always choose this path because this is the shortest one, right? तो ये बेनिफिट हमारे पास होता था कि हम शॉर्टेस्ट पाथ, वो जो एल्गोरिदम है उसके बेसिस पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं उस टेबल को, हमें ज्यादा नोड्स पे या ज्यादा टेबल्स पे जंप नहीं करना पड़ रहा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर ये टेबल, ये डेटाबेस टेबल, सपोज मेरे पास आप कह सकते हो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल का नेटवर्क बढ़ गया है, तो यहाँ पे मेरे पास एल्गोरिदम भी एफिशिएंट होना चाहिए वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए, और वो एल्गोरिदम में भी मॉडिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ योर नेटवर्क ऑफ डेटाबेस टेबल्स। तो ये इसका यहाँ पर एक ड्रॉबैक था कि जैसे जैसे नेटवर्क की साइज बढ़ेगी वैसे हमारा पाथ फाइंड करने का जो स्पीड है वो स्लो होता जाएगा और हमें डेटाबेस टेबल को एक्सेस करने का जो स्पीड है वो भी हमारी स्लो होती जाएगी। तो ये ड्रॉबैक था हमारा नेटवर्क मॉडल का। तो इसे अवॉइड करने के लिए व्हाट दे सेड दैट ओके वी विल ट्राई टू रिफाइन दिस मॉडल एंड वी विल जंप टू रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है कि आपके जो डेटाबेस टेबल्स हैं दे विल ऑलवेज बी इन टेबुलर फॉर्म एंड दे विल बी लिंक्ड विथ प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप्स। ठीक है, हर एक में, जैसे यहाँ पर अगर ये मेरी प्राइमरी की है, इट विल बी लाइक अ फॉरेन की ओवर हियर, तो इसके इंडेक्स के बेसिस पे
I can identify this particular database tables columns, और हर टेबल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी, और अगर रिलेशनशिप नहीं होती then also I am able to access these particular database tables. So वो डिपेंड करता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा उस टेबल का एक्सेस होना चाहिए आपके पास। अगर इन 3 टेबल्स की परमिशन है, ये तीनों टेबल एक ही डेटाबेस से बिलोंग करते हैं, सपोज दीज 3 टेबल्स बिलोंग टू यूनिवर्सिटी डेटाबेस, ठीक है, और इन तीनों टेबल का एक्सेस आपके पास है, दैट मीन्स यू कैन एक्सेस एनी टेबल फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। So that was the benefit of relational data model. Okay, वो tables को it used to call tables as relations, and हर table में we have this kind of primary key foreign key relationship between them, and based on that we were able to identify the records, or based on that we were able to access those tables easily and in a much more quicker way. ठीक है, so that is the benefit of your relational data model. उसके बाद हमारे पास और भी डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स आई हैं, जैसे ER मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. सो हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल वर्क्स? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट मतलब मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया, ठीक है, अब जो भी इसके कॉलम नेम्स होंगे, आईडी, नेम, एज, मैं वो नाम के यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, और जितने भी डेटा मुझे इंसर्ट करने होंगे दोज विल बी दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. सो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 in that order. So I hope you remember the creation of classes and objects in Java programming. आपने जावा में पढ़ा होगा या फिर C++ में आपने पढ़ा होगा. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? इन ऑब्जेक्ट्स में आपका एक्चुअल में एक एक रिकॉर्ड स्टोर होगा, ठीक है. तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे क्लास स्टूडेंट हो गया, वैसे ही मैं दूसरा क्लास क्रिएट करूंगा जिसको सब्जेक्ट नेम दूंगा, उसके अंदर जो कॉलम्स होंगे दोज विल बी माय वेरिएबल नेम्स, और उसके बेस पे मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा. फिर क्लास और स्टूडेंट के बीच में हम लोग लिंक्स क्रिएट करेंगे, फंक्शंस, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस. सो ऑल ऑफ दिस थिंग इज पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट के टर्म्स में आपका जो डेटा है वो स्टोर होगा. वहीं पे अगर मैं ER मॉडल की बात करता हूं, तो ER मॉडल में क्या होता है? ER मॉडल में एक्चुअल में हम लोग डेटा के बजाय वी यूज डिफरेंट सिंबल्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ठीक है. सो जैसे आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स पढ़े होंगे, जब आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी या फिर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तो आपने फ्लो चार्ट या सूडो कोड आपने पढ़ा होगा. तो ये जो फ्लो चार्ट के लिए हम लोग जो सिंबल्स यूज करते थे, वैसे ही हम लोग सिंबल्स यूज करके हर टेबल्स और उनके बीच, उनके जो भी कॉलम्स है उनके बीच में, टेबल्स, उनके कॉलम्स, मल्टीपल टेबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, ये सारी हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ER मॉडल. नाउ दिस वन इज मोर यूज्ड फॉर this model is used to make non-technical users understand how actually our database is going to be created, what are going to be our database tables, and what will be the relationship between them. So अगर आप ER models की help से आप modeling करते हो अपने database की, that means it will be very easy for non-technical users also to understand how what kind of tables are being created and what is the relationship between those tables. Okay, so we will learn that in our later part of our this particular same introduction or to databases. later part में हम लोग पढ़ेंगे क्या ER model है, कैसे उसमें notations use होते हैं, and all of those definitions. But for now you will remember this thing, that ER model is also a modeling technique where we use different symbols to represent database tables and to show relationship between them. Okay, so these all are actually your database, or sorry, data modeling techniques. So these are some of the data model techniques that we have just discussed. See here, so relational model, it will have this kind of structure. Okay, these columns, these will be called attributes. The rows in relational model are called tuples. We will discuss those things more elaborately later on. For now you will just remember that what is relational model, this table, the database
इज स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट, ऑल द टेबल्स, ठीक है, जो भी आपके डेटाबेस के टेबल्स होंगे सब आपके टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होंगे, जिसे हम रिलेशन कहते हैं, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे, और रोज को, जो ये सारे रिकॉर्ड है, एक एक रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल देम ट्यूपल्स, ठीक है। वहीं पे हमारे पास ये सैंपल रिलेशनल डेटाबेस का देखिए सैंपल दिया हुआ है, ये कस्टमर टेबल हो गया, ये मेरे पास अकाउंट टेबल हो गया, ये डिपॉजिटर टेबल हो गया, तो ये सारे टेबल्स हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, तो ये इस प्रकार से आपका रिलेशनल डेटाबेस दिखेगा। वहीं पे अगर मैं ईआर मॉडल की बात करता हूं तो ईआर मॉडल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये मेरा ईआर मॉडल का स्ट्रक्चर है। कस्टमर, यहाँ पे जो कस्टमर टेबल था उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर एक सिंपल स्क्वायर ब्लॉक से। अकाउंट, अकाउंट मेरा टेबल था, उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ से स्क्वायर से। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर डायमंड सिंबल। और जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, जो उनके कॉलम नेम्स थे, जो एट्रीब्यूट्स थे, उसे हम इस ओवल सिंबल में represent करते हैं। So we will learn about this ER model later on. For now you remember this thing that this is also one of the modeling techniques. वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, डेटा मॉडल, इसमें क्या होता है, हमारे जो क्लासेस हम क्रिएट करते हैं उन क्लासेस के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, और उन्हीं वेरिएबल्स में हम स्टोर करवाते हैं हमारे डेटाबेस के सॉरी एक्चुअल जो डेटा है उन्हीं वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर करवाएंगे बाय क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे दिखिए, प्रिजर्व ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्ट और रिलेशनल डेटा मॉडल का, ठीक है। सो इट प्रिजर्व्स रिलेशनल फाउंडेशंस आल्सो, एज वेल एज इट आल्सो uses object oriented concept to model the databases. Okay, so I hope this is clear for you guys that what actually data model is. Data model is the tools that are used for representing or describing data, data semantics, data relationships as well as data constraints. some जो भी limitations या rules हम set करेंगे उन database tables के ऊपर, वो भी हम वहां पर mention करते हैं। Next one is SQL. Okay, SQL is called structured query language. Here these are just the examples, you can just view it, I will forward this slide to you, but for now you remember this thing, SQL is the widely used non procedural programming language, ठीक है। procedural and non procedural programming language you already know, किसे हम procedural programming language कहेंगे और किसे non procedural। आप ये चीज ध्यान रखें कि हमें जब भी नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जहां पर हमें पूरे डिटेल्स नहीं बतानी पड़ रही, जैसे अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करता हूं तो सी प्रोग्राम को हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर हमें पूरा डिफाइन करके बताना पड़ता है कि एक्चुअल में हमारे प्रोग्राम में सपोज मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे उस वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उन वेरिएबल्स में वैल्यूज किस प्रकार की स्टोर होनी है, फिर उसके बाद वहां पे एडिशन का फंक्शन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद रिजल्ट जनरेट होगा तो वो उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मुझे वहां करेक्टली मेंशन करनी पड़ेंगी, तभी जाके वो प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां पे हमें बताना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करिए तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, उसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नॉन प्रोसीजरल किसे कहेंगे, जहां पर हमें सिर्फ कमांड देना है और अगर वहां पे वो चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमें आउटपुट देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो एसक्यूएल जो है वो हमारा नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेस्ट एग्जांपल मैं अगर देता हूँ तो लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आपको चाय बनानी है, और मैं अगर आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि भाई चाय बनाने के लिए आपको पहले दूध उबालना पड़ेगा, उसमें थोड़ा पानी डालिए, उसमें चाय पत्ती डालिए, उसमें चीनी डालिए, मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आप वो प्रोसेस करते हो, दैट मीन्स दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मैंने आपको सारी इंस्ट्रक्शन दी, उसके अकॉर्डिंग आपने टास्क परफॉर्म किया। और अगर मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि भाई चाय बना दो और आप सीधा चाय बना के लेके आते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, दैट इज नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एसक्यूएल जो है वो हमारा नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब एसक्यूएल जो है वो डिवाइड है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एसक्यूएल जो आपका है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, DDL, DML, DCL. We will also discuss about one more part which is
Okay, we will also discuss about TCL. So what is DDL means? It is data definition language. Okay, this is just you can say abbreviated form for data definition language. DML is for data manipulation language. DCL is for data control language, and TCL is for transaction control language. So we are going to discuss about these parts. Okay, first of all, DDL data definition language किसे कहेंगे? Those SQL syntaxes which helps you in creation of database structures. जैसे कि अगर मुझे डेटाबेस का टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस के टेबल के लिए डेटाबेस यूजर क्रिएट करना है, डेटाबेस के टेबल में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, मतलब मेरे पास पहले 4 कॉलम थे, अब मुझे 2 कॉलम और ऐड करने हैं, तो ये सारे टास्क अगर मुझे परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो भी एसक्यूएल सिंटैक्सेस मैं यूज करूंगा उन्हें मैं डीडीएल एसक्यूएल सिंटैक्स कहूंगा. सो इन शॉर्ट, दोज एसक्यूएल सिंटैक्सेस व्हिच हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर्स कैन बी टर्म्ड एज डीडीएल एसक्यूएल सिंटैक्सेस. ओके, तो एग्जांपल कौन से होंगे डीडीएल एसक्यूएल सिंटैक्सेस के? क्रिएट टेबल, create user, alter table, drop, etc. Okay, so these are the examples of your DDL SQL syntaxes. वहीं पे मैं अगर DML SQL syntaxes की बात करता हूं तो कौन से SQL syntax को हम DML SQL syntax कहेंगे? जब भी मैं DDL SQL syntax चलाऊंगा, I will be able to create a database table, I will be able to create a database user. और DML SQL syntax, सपोज मैं अपने डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया है, मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल एक क्रिएट कर दिया, अब इस टेबल के अंदर मुझे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, मतलब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है कि भाई 1 रोल नंबर अशोक नाम के स्टूडेंट का है, सेकंड रोल नंबर मयंक नाम के स्टूडेंट का है, थर्ड रोल नंबर कार्तिक नाम के स्टूडेंट का है, इस प्रकार से. तो ये जो डेटा इंसर्ट करना है वो मैं DDL SQL सिंटैक्स से नहीं कर सकता. तो जो SQL सिंटैक्स की हेल्प से मैं डेटा इंसर्ट कर सकता हूं अपने डेटाबेस टेबल में, या उस डेटा को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, उस डेटा को मैं डिलीट कर सकता हूं, ऐसे SQL सिंटैक्सेस को हम DML SQL सिंटैक्स कहेंगे. तो यहाँ पे DML SQL सिंटैक्स की डेफिनेशन क्या होगी? दोज SQL सिंटैक्सेस व्हिच हेल्प्स यू इन क्रिएशन ऑफ डेटा इनसाइड द डेटाबेस टेबल्स. ओके, और इंसर्टिंग द डेटा इनसाइड द डेटाबेस टेबल, मॉडिफाइंग द डेटा, deleting the data or updating the data inside the database tables are called DML SQL syntaxes. तो यहाँ पे आपके कौन कौन से सिंटैक्सेस होंगे? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एक्सेट्रा. These can be termed as DML SQL syntaxes. वहीं पे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL is termed as डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज किसे कहेंगे? उन SQL सिंटैक्सेस को जिनको हम, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस टेबल्स पे डेटाबेस यूजर्स को परमिशंस, या फिर हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस या फिर परमिशंस हम अप्लाई कर सकते हैं. तो उसके आपके जो सिंटैक्स है वो है ग्रांट एंड रिवोक. दीज टू आर द कीवर्ड और एसक्यूएल सिंटैक्सेस. ग्रांट की हेल्प से मैं किसी भी टेबल पे यूजर को परमिशंस ग्रांट कर सकता हूं, और रिवोक की हेल्प से मैं उससे परमिशंस छीन सकता हूं. ठीक है. और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, अगर मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, या फिर मुझे डेटाबेस से कुछ डेटा फेच करवाना है, या फिर जो भी डेटाबेस में मॉडिफिकेशन हुए हैं उन्हें मुझे परमानेंटली सेव करवाना है, तो मैं यूज कर सकता हूं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो सेव पॉइंट है, कमिट है, रोल बैक है. रोल बैक इज काइंड ऑफ अनडू, कमिट इज लाइक सेविंग द डेटा. ओके, कंट्रोल एस जैसे आप प्रेस करते हो जब आप वर्ड फाइल में सेव करते हो, तो सेम कमिट का काम होता है यहाँ पर हमारे एसक्यूएल के अंदर. तो जब हम ये सिंटैक्सेस देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. तब तक आप ये चीज का ध्यान रखिए कि ये जो सेव पॉइंट है, कमिट है या रोल बैक है, इन सब का यूज दे आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. प्रीवियसली ये सारे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये दोनों कंबाइन होकर सिर्फ एक ही पार्ट कहा जाता था. ठीक है, ये दोनों को. लेकिन अब इन दोनों को सेपरेटली, आप अगर ऑनलाइन कहीं पे पढ़ते हो तो ये दोनों को अगर सेपरेटली दिखाया जाता है तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में भी उसे सेपरेटली लिख सकते हैं. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द स्लाइड. आप देख सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज.
टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। तो हम लोग अभी एसक्यूएल जो करंटली पढ़ रहे हैं वो है प्रोसीजरल, सॉरी नॉन प्रोसीजरल। और प्रोसीजरल कब हम पढ़ेंगे, जब हम ट्रिगर्स पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग पार्ट भी है हमारे एसक्यूएल का जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट डीडीएल। फर्स्ट ऑफ ऑल डीडीएल क्या है, देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल का सिंटेक्स लिखा हुआ है। क्रिएट टेबल करना, क्रिएट यूजर करना, जब भी आप ये सिंटेक्स चलाते हो दैट मीन्स यू आर एबल टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स होंगे, क्या रूल्स आपको अप्लाई करने हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होने वाली है, तो ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर सिंटेक्स की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डीडीएल एसक्यूएल सिंटेक्स की वजह से। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। वैसे ही अगर मैं डीएमएल, हमने देखा डीएमएल का सिंटेक्स, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी है, इंसर्ट की क्वेरी होगी, ठीक है, दैट कैन बी टर्म्ड एज डीएमएल एसक्यूएल सिंटेक्सेस। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको कहा, आपको किसी भी टेबल पे कोई राइट्स अप्लाई करनी है, कोई परमिशंस देनी है, देन वी विल ऑलवेज वर्क विद डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हमने कौन से कमांड्स यूज किए हैं, हमने यूज किया हुआ है ग्रांट, सिलेक्ट, सी हियर, ये एग्जांपल दिया हुआ है। क्या कर रहा है, ये परमिशन दे रहा है किसको, एक यूजर को परमिशन दे रहा है, कोई भी एक टेबल है माई टेबल करके, उस पर क्या परमिशन दे रहा है, सिलेक्ट और अपडेट की। भाई वो सिलेक्ट की क्वेरी अप्लाई कर सकता है, अपडेट की क्वेरी अप्लाई कर सकता है, नया डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता। रिवोक कैसे करते हैं, रिवोक मतलब हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से या उस पर्टिकुलर यूजर से उसकी परमिशंस छीन लेते हैं। सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, तो मैं उस एम्प्लॉय नेम के आगे से जो भी परमिशंस होंगी मैं वो रिवोक कर दूंगा। क्यों, क्योंकि रिवोक करने के बाद अगर वो एम्प्लॉय बाहर से भी हमारे कंपनी के डेटाबेस को एक्सेस करने की ट्राई करेगा तो उसके पास वो परमिशंस नहीं रहेगी, तो हमारे डेटाबेस को वो करप्ट नहीं कर सकता, उसे इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं भेज सकता। ठीक है, मोस्टली डीसीएल स्टेटमेंट्स अप्लाई होते हैं आपके व्यूज पे, आपके डेटाबेस टेबल्स पे, यूजर्स पे, प्रोसीजर्स पे, इन पे अप्लाई होते हैं। ओके, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं मोस्टली, कमिट एंड रोल बैक, सेव पॉइंट। कमिट इज कमिट्स अ ट्रांजैक्शन, कमिट दैट मींस जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सारे चेंजेस सेव कर देगा। रोल बैक, जो भी चेंजेस आपने किए हैं आप चाहते हो कि ये चेंजेस अनडू हो जाए तो आप रोल बैक करोगे। और सेव पॉइंट इज लाइक अ चेक पॉइंट। इन सब का हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली आइडिया आएगा। फिलहाल आप ये सिर्फ ध्यान रखिए कि कमिट इज फॉर सेविंग अ ट्रांजैक्शन, rollback is for undoing a transaction, and save point is like a checkpoint. Okay, so this concludes our third part in introduction to database. I hope you understood this topic, and hopefully in our next lecture we will see entity relationship model and move on from there. Okay, so thank you very much students, see you in the next lecture.